बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, फ़खैर रागलाई। मैं हूँ आतिफ वक्कास और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के इस लेक्चर में बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ नॉट अ रियल फोर्स, इट इज़ a pseudo force, it is an inertial force, it is an apparent force, the force which appears only if some object revolve in a circular path under the influence of some centripetal force. That object feels a force in outward direction. So the centrifugal force can only be observed if the observer is part of that rotating system. So it is not the actual force, it is apparent force. What is then the real force? The real force is centripetal force, which revolves the objects into a circular path. But the objects feel some force in outward direction, and that is apparent force. That is not some real force, it is inertial force. It comes there only if there is some centripetal force. So because of inertia, the object won't like to be pulled towards the center of that circle, and a sort of force acts upon that object. It is sometimes called the reaction of centripetal force, but there is a problem with this statement because it acts on the same body upon which the centripetal force acts. So how can we call it a reaction of that centripetal force? But it can be called the reaction in a sense that the rotating objects feel it in opposite direction. If the observer is part of that rotating system, then he is observing the same rotation from another point of view, from another reference frame. That is not the inertial reference frame. And if the observer is part of that oscillating system, of that rotating system, he is observing the same rotation from an accelerated frame, from a non-inertial frame, and that's why to him then there appears a force that is called centrifugal force. It cannot be observed if viewed from the outer frame, from an inertial frame. We cannot observe that force. So it only apparently acts on the objects that revolve in a circular path, and its magnitude is no doubt equal to that of the centripetal force, but it acts in a sense that is outward, but it acts in outward direction, and that's why vectorially, if I want to write it in vector form, I must write it this way. And then this expression of centrifugal force may mislead us to call it the reaction force of centripetal force, जो कि इस तरह है. बहरहाल इसको अगर हम सेंट्रिपिटल फोर्स की अपोजिशन का रिएक्शन माने या न माने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं. यस, वी कैन यूज़ इट. हाउ कैन वी यूज़ इट? अगर हम रॉकेट में खला में जाने का इरादा रखते हो, हम या हम जैसे कोई और ह्यूमंस अगर खला में जाते हैं तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा स्पीड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशंस होती है. एक्सेलरेशन इस तरह होती है कि जब रॉकेट ज़मीन से ऊपर जाने लगता है तो पहले इसमें बहुत ज़्यादा मास इसका बहुत ज़्यादा होता है, फ्यूल्स होते हैं और इंजन उसके टरबाइंस चलते हैं, वो आराम आराम से ऊपर जाता है.
जूं जूं वो ऊपर जाता है फ्यूल कंज्यूम होता है, मास कम होता जाता है, टरबाइन ऑलमोस्ट सेम पावर दे रहे होते हैं। सो मास कम होने से, इनर्शिया की वजह से वो एक्सेलरेट होता जाता है। क्यों? क्योंकि मास कंज्यूम हो रहा है। आप जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो क्या होता है, मास कम होता जाता है, फोर्स हमने ऑलमोस्ट, मैंने कहा कि टरबाइन एक जैसा पावर कंज्यूम कर रहा है, एक जैसा पावर पुश उसको मिल रहा है, लेकिन मसला ये है कि मास कम हो रहा है तो इसलिए वो एक्सेलरेट होता जाता है, और फिर वो इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन हो जाती है कि उस एक्सेलरेशन पे फिर सरवाइव करने के लिए हमारी जो हमारी बॉडी की जो एडजस्टमेंट है वो इस तरह से नहीं है, हम अर्थ पे रहते हैं, हमारी एडाप्टेशन नहीं होती, तो उसके लिए एस्ट्रोनॉमर्स को ट्रेन करना पड़ता है। एस्ट्रोनॉमर्स को ट्रेन करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूज बना लेते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा, यानी एक एक्सेलरेटेड फ्रेम बना लेते हैं ताकि क्योंकि हम यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम में उठने बैठने इधर उधर सारी एक्टिविटीज़ करने के आदी होते हैं। एक्सेलरेटेड फ्रेम में सिचुएशंस अलग होती है, तो उनको एक्सेलरेटेड फ्रेम के साथ फेमिलियर करने के लिए वी यूज़ सेंट्रीफ्यूज। एक तो इस काम के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम इसको, आप लोगों ने सुना होगा ये जो लेबॉरेटरीज़ में ब्लड के सैंपल्स को उसके टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड के अंदर हैवी और लाइटर पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम इसको इंतहाई ज़्यादा स्पीड से घुमाते हैं, और ये है कि वहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज़ करते हैं। सो देयर आर मैनी अदर यूजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपके घर में जो है क्रीम सेपरेटर है, वो एक इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं। सो देयर आर मैनी अदर केसेस वी यूज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r। सो इसके बाद हम सेंट्रीपिटल फोर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। इनमें से एक आपकी बुक में है, दैट इज़ बैंकिंग ऑफ रोड। आप लोगों ने देखा होगा कि शार्प कर्व्स जो होते हैं, यानी जब शार्प मोड़ आता है रोड में, तो वहाँ पर रोड का एक किनारा थोड़ा सा दूसरे किनारे की निस्बत ऊंचा होता है। यानी अगर मैं ये एक कर्व बना लूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये रोड है और ये रोड का बाहर का हिस्सा है, ये रोड का अंदर का हिस्सा है, और अगर कोई व्हीकल इस रोड पे जाएगा और वो इस डायरेक्शन में मुड़ना चाहे, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मुड़ेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी, जो क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट को या उस व्हीकल को किस डायरेक्शन में, अंदर की डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करेगी, वो इसको अंदर घुमाने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जांपल ये कोई रत्सनुमा कोई चीज़ है, पता नहीं क्या बना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चलो बहरहाल ये क्या है, ये कोई व्हीकल है और लेट्स सपोज यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है, और इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर अब यहाँ पे अगर आप देखें, इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक उस रोड का नॉर्मल उसके ऊपर एक्ट करेगा और एक जो है इसका अपना वेट एक्ट करेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि रोड का एक किनारा रोड के दूसरे किनारे की निस्बत ऊंचा उठा होता है। अगर ये इस तरह प्लेन रोड होता, ठीक है, बिल्कुल इस तरह, तो इसका नॉर्मल स्ट्रेट होता, ठीक है, लेकिन
अब चूंकि मैंने कहा कि रोड का बाहर का किनारा रोड के अंदर के किनारे की निस्बत थोड़ा सा ऊंचा है, तो मैं अगर इसको ऐसे कर लूँ, ऐसे, तो रोड इस तरह हो जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल भी अपनी जगह से इतना ही एंगल कवर करेगा जितना इस प्लेन ने कवर किया। इस प्लेन ने कवर किया, तो ये नॉर्मल इधर आ जाएगा, अपनी पुरानी पोजीशन से हट के नई पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ। अब इसका भी वही एंगल बनेगा थीटा जो इसका बन रहा है। सो ये जो एंगल है, इस एंगल को रोड के दो किनारों के दरमियान जो एंगल होता है उसको बैंकिंग एंगल कहते हैं। क्या? बैंकिंग एंगल। और वो बैंकिंग एंगल जो है उसके लिए हम एक्सप्रेशन अभी डिराइव करेंगे कुछ देर में, लेकिन मैं यहाँ पर बुनियादी चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि वेट, नॉर्मली तो वेट जो है, अगर प्लेन कोई रोड है तो वहाँ पर वेट और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो बैलेंस कर पाते हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए कि रोड का एक किनारा रोड के दूसरे किनारे की निस्बत ऊपर हो, ठीक है, ये सिचुएशन हो, तो फिर क्या हो जाता है? फिर मामला ख़राब हो जाता है। ख़राब नहीं हो जाता, कुछ केसेस में अच्छा हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अब इस ऑब्जेक्ट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा गंद नहीं मचाते, ठीक है। यहाँ पर उसी को फ्री बॉडी डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करता हूँ। ये वो बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास मैंने उठा के यहाँ पे रख लिया, ये वो सारी बॉडी। अब इस बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है, जैसे हमने यहाँ पे बात की है कि अब नॉर्मल पहली पोजीशन से रोटेट हो गया है, बहुत ज़्यादा मैंने रोटेट कर दिया है, लेकिन चलो खैर है। और वेट उसी तरह डाउनवर्ड है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि वो कौन सी फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट को, इस व्हीकल को सर्कुलर पाथ पे घुमाती है। जाहिर है वी नीड अ सेंट्रीपिटल फोर्स, विच कंपोनेंट ऑफ इट्स फोर्स इज एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये देखने के लिए मुझे इसके कंपोनेंट्स बनाने होंगे, और वो कंपोनेंट्स मैं अपनी मर्जी से बनाता हूँ, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के। मैं कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ? यहाँ पे एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट ऊपर। अब ये क्या हुआ? रिजॉल्व हुआ इन दो कंपोनेंट्स में। अब यहां से आप देख रहे हैं कि ये जो इसका कंपोनेंट है, ये अगर नॉर्मल फोर्स है, इसको मैं फॉर एग्जांपल F कहता हूं, तो ये इसका F, हाँ, हूँ इतना एक सवाल पैदा होता। अब इधर एक सवाल पैदा होता है, हाँ, अब इधर एक सवाल पैदा होता है, और वो सवाल ये है कि ये वाला F cos थीटा होगा या ये वाला F cos थीटा होगा, और कौन सा इसमें से F sin थीटा होगा, बिकॉज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम F cos थीटा और F sin थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एंगल को देखना होगा, यहाँ पे जो एंगल है थीटा, यहाँ पे वही एंगल है थीटा, और आप जानते हैं कि थीटा के दो हैंड्स होते हैं, एक एडजेसेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय cos थीटा, और एक हाइपोटेनियस जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो जो बच गया दैट इज अपोजिट वेक्टर, इसको यहाँ भी ड्रा किया जा सकता है, अपोजिट वेक्टर थीटा के अपोजिट वाला F साइन थीटा से रिप्रेजेंट होता है। सो द एडजेसेंट साइड and the perpendicular या opposite side
So adjacent side is f cos theta, opposite side is f sin theta. And which component is in the direction of centripetal force? This f sin theta. This force here pulls the object towards the center of that circle. And that is the required centripetal force. So f sin theta is mv square divided by r. And how about this force? This force balances the weight. So I can write f cos theta equals to mg. And if I take their ratio, why would I take their ratio? That is because I may need the expression for the banking angle. अगर मुझे बैंकिंग एंगल के लिए एक्सप्रेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इन दो इक्वेशंस को यूज करूंगा. थीटा, अब कोई इंजीनियर है, उसे ये देखना है कि यहाँ पर रोड के बाहर के हिस्से को रोड के अंदर के हिस्से से कितना ऊंचा बनाया जाए, एंगल क्या होना चाहिए, तो फिर वो किन बातों को देखेगा, ये ज़रा देख लेते हैं. एफ साइन थीटा, मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे डिवाइड कर देता हूँ एंड आई गेट एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई एफ कॉस थीटा. And this way I get mv square divided by r divided by mg. So m cancels with m, f cancels with f, and I am left with what? I am left with tangent theta. Sin theta divided by cos theta is tangent theta. That is equal to v square divided by rg. And from here आप बैंकिंग एंगल की एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं. दैट इज टेंजेंट इनवर्स v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी. यहां से आपको बैंकिंग एंगल मिल सकता है. और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि बैंकिंग एंगल आपको ऑलरेडी मालूम है किसी रोड का, और आप ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पर स्पीड कितनी होनी चाहिए, आपको स्पीड लिमिट मालूम नहीं है, तो आप ये अंदाज़ा लगाने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को स्पीड के लिए रीअरेंज करेंगे. कैसे 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 बोलो, कैसे? ऐसे v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा and then take square root. अच्छा, तो ये तो दो मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस हो गए. इन दोनों के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं. ये एक्सप्रेशंस कहाँ से आ गए, समेशन ऑफ फोर्सेस की इस वर्टिकल डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेस, उससे हमारे पास 0 आ रहा था बिकॉज दैट वाज बैलेंस्ड. एंड इस डायरेक्शन में जो समेशन ऑफ फोर्सेस थी, इससे हमारे पास एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर आता है. तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को यूज़ करके हम बैंकिंग एंगल के लिए भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, हम रिक्वायर्ड स्पीड के लिए भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं. एक सिंपल सा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम. आप किसी पहाड़ी रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ते पे क्या है, वहाँ पे बर्फ़ है, और आपको मुड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, जाहिर है अगर बैंकिंग एंगल ना होगा तो फिर फ्रिक्शन से हम मोड़ जो मुड़ेंगे उसके लिए रिक्वायर्ड जो फोर्स है वो फ्रिक्शन से आती है. टायर और ज़मीन के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन होती है, जिससे हमें वो फोर्स मिलती है. अगर आप यहाँ पर थीटा जो है 0 पुट कर लें, कोई बैंकिंग एंगल ना हो,
तो टेंजेंट 0 यहाँ से क्या आता है 0 आता है, तो आपको बिल्कुल गाड़ी रोकनी पड़ेगी और आराम आराम से इसको जो है ज़ाहिर है आप सेंस बना सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि चलो वो शर्त नहीं रखी कि रोड प्लेन नहीं है, वहाँ पे बैंकिंग एंगल मौजूद है, लेकिन बैंकिंग एंगल कितना होना चाहिए कि अगर आप मुकम्मल तौर पर फ्रिक्शंस ख़त्म कर दें, यानी बर्फ़ पड़ी हुई है और आप गाड़ी मोड़ना चाहते हैं, आपकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है और आप चाहते हैं कि आप मोड़ लें, लेकिन टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन 0, तो सारी की सारी फोर्स कहाँ से आएगी mg sin थीटा से। तो आप क्या करेंगे बताओ क्या करेंगे? अच्छा जाहिर है आप बैंकिंग एंगल का सहारा लेंगे। बैंकिंग एंगल कितना होना चाहिए? अभी कुछ देर पहले आपने एक एक्सप्रेशन लिखी, तो सिर्फ स्पीड से काम नहीं चलेगा, आपको उस रोड का रेडियस भी चाहिए, आपको उस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चाहिए, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द एंगल, द बैंकिंग एंगल। सो बैंकिंग एंगल कैलकुलेट करने के लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं। लेट सपोज आप कहते हैं कि 40 मीटर जो है उसका रेडियस उस आर्क का, उस मोड़ का, जाहिर है मोड़ किसी सर्कल का कोई टुकड़ा होता है, सो उस सर्कल का, एंड देन यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन। जी 9.8 पुट कर लें, 10 पुट कर लें, 9.6 पुट कर लें, क्योंकि जाहिर है वो मैंने ये एजम्पशन लिया कि वो पहाड़ी इलाका है, सो वो थोड़ा सा सी लेवल से ऊपर होगा तो ग्रेविटी शायद कुछ कम होगी। बहरहाल दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। बताने का मकसद ये था कि आप इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, एंड सिर्फ एक क्लिक से मुझे अपने सामने से गायब कर सकते हैं। लेकिन वेट, अस्सलाम वालेकुम।